جمعرات 23 اکتوبر کے سحربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس 400 کلو گرام افزودہ یورینیم موجود ہے۔ یوکرین میں روس کے شدید میزائل حملے، بچوں سمیت 7 افراد ہلاک۔ جانیے کیا ٹوما ہاک میزائل یوکرین جنگ کا رخ بدل سکتے ہیں؟ امریکہ کی روس پر نئی پابندیاں، ٹرمپ پیوتن ملاقات منسوخ۔ تیونس میں غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے بچے سمیت 40 افراد ہلاک۔ سرحدی کشیدگی کے بعد سرحدیں تاحال بند، افغانستان سے پاکستان کا ایئر ٹکٹ $500 تک پہنچ گیا۔ اور ترکی میں شامی پناہ گزین خواتین کے ساتھ جنسی استحصال کا انکشاف۔ اور دہلی میں صوفی قوالی کی صدیوں پرانی روایت آج بھی زندہ۔ اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع سینٹرل کرم میں عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی۔ اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سحربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس 400 کلو گرام یورینیم کے ذخائر موجود ہیں، جن کی افزودگی کی شرح 60% ہے۔ کمیشن کے سربراہ رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس موجود افزودہ یورینیم جوہری ہتھیار بنانے کے لیے درکار شرح سے بس تھوڑی ہی کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے میں سفارتکاری ناکام ہو جاتی ہے تو خدشہ ہے کہ ایران کے خلاف دوبارہ طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے۔ رافیل گراسی نے انٹرویو کے دوران کہا کہ اگر ایران افزودگی کا عمل جاری رکھتا ہے تو ایران کے پاس اتنا مواد ہے کہ اس سے 10 جوہری بم بنائے جا سکتے ہیں۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ تہران کا جوہری ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ ہے، لیکن ان کے بقول اسے یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن کے معائنہ کاروں کو دوبارہ ایران آنے کی اجازت دی جائے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ انہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ایران کا جوہری ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں ہے، انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں سے قبل انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن کے معائنہ کاروں نے ان مقامات کا دورہ کیا تھا۔ تب سے ہم سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر کی مدد سے ان مقامات کا معائنہ کر رہے ہیں، اور ایران کے جوہری پروگرام پر نظر رکھنے والے دیگر ممالک بھی اس بات سے متفق ہیں۔ یاد رہے کہ رواں سال جون میں ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بعد امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو مکمل ختم کر دیا گیا ہے۔ حالیہ کچھ عرصے کے دوران ایرانی سرکاری حکام نے کئی بار رافیل گروسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ 12 روزہ جنگ سے قبل IAEA کی رپورٹ نے ایران کے جوہری ہتھیاروں کے حصول پر خدشات میں اضافہ کیا تھا اور ایران پر حملے کی راہ ہموار کی تھی۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار بنانا نہیں چاہتا، اور کیونکہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے فتوے کے مطابق جوہری ہتھیاروں کی تیاری مذہبی طور پر ممنوع ہے۔ یورپی یونین اور امریکہ کا مطالبہ ہے کہ ایران جوہری پروگرام کے پرامن ہونے کی یقین دہانی کے لیے بین الاقوامی معائنہ کاروں کو معائنہ کرنے کی اجازت دے۔ اس وقت IAEA کا کوئی بھی معائنہ کار ایران میں موجود نہیں ہے، اور ایران کا کہنا ہے کہ اس پر پابندیوں کے اطلاق کے بعد معائنہ کار ایران کی جوہری تنصیبات کا دورہ نہیں کر سکتے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے کیے گئے میزائل اور ڈرون حملوں میں کم سے کم 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ان ہلاک ہونے والے افراد میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیف میں روسی میزائل سے ایک گارڈن متاثر ہوا، جبکہ دارالحکومت کیو میں بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ زخمیوں میں 27 بچے بھی شامل ہیں۔ یوکرین کی ایئر فورس کے مطابق روس نے 405 ڈرون اور 28 میزائل حملے کیے، جن میں 15 بیلسٹک میزائل تھے۔ اس حملے سے چند گھنٹے قبل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ صدر پیوتن سے ان کی ملاقات مؤخر ہو گئی ہے کیونکہ وہ بے معنی ملاقات نہیں کرنا چاہتے، جبکہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ماسکو جنگ روکنے کے لیے کسی دباؤ میں نہیں آ رہا۔
याद रहे कि क्रेमलिन ने सदर ट्रंप और यूरोपीय रहनुमाओं की जानिब से तजवीज़ करदा लड़ाई को मौजूदा महाज पर मुंजमद करके जंग बंदी करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। सदर ट्रंप का कहना था कि लड़ाई जहां है इसे वहीं रोक देना चाहिए, घर जाओ, लड़ाई बंद करो, लोगों को मारना बंद करो। रूस ने बारहा इस तजवीज़ की मुखालफत की है। मंगल के रोज़ रूसी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि मॉस्को सिर्फ देरपा और पायदार अमन में दिलचस्पी रखता है और इसके लिए इस तनाज़े की असल वजह पर बात करने की ज़रूरत है। दूसरी जानब ये क्यास आराइयाँ हो रही हैं कि अमेरिका यूक्रेन को टोमाहाक क्रूज मिसाइल फराहम करने वाला है, लेकिन जुमेरात को सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को खुद भी ये मिसाइल चाहिए। तो क्या ये मिसाइल यूक्रेन जंग का नक्शा बदल सकते हैं? सुनिए BBC के जोनाथन बेल की रिपोर्ट, पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी। यूक्रेन ने रूस के अंदर दूर तक मिसाइल हमले किए हैं ताकि उसे भी वैसा ही दर्द महसूस हो जो यूक्रेन बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन यूक्रेन अब शिद्दत से चाहता है कि अमेरिका उसे टोमाहाक क्रूज मिसाइल फराहम करे और इसका इजहार उन्होंने अमेरिकी वज़ीर दिफा की मौजूदगी में किया। एक बहुत अहम मामला है दूर तक पार करने वाले मिसाइलों का जो हमारे पार्टनर्स के पास हैं। इन मिसाइलों के नाम से सभी वाकिफ हैं। वो बात कर रहे थे टोमाहाक क्रूज मिसाइल की। उनको गिराना मुश्किल है क्योंकि उनकी रफ्तार 500 मील फी घंटा से ज़्यादा है। ज़्यादा धमाका खेज मवाद ले जा सकते हैं, लेकिन ये महंगे हैं। एक मिसाइल की लागत $1 मिलियन से ज़्यादा है, लेकिन उनका असल फ़ायदा उनकी रेंज है। अब तक मगरबी ममालिक ने यूक्रेन को जो मिसाइल फराहम किए हैं उनकी रेंज 300 किलोमीटर तक है, लेकिन एक टोमाहाक क्रूज मिसाइल चाहे ज़मीन से दागा जाए या समंदर से 8 गुना ज़्यादा फासले यानी तकरीबन 2500 किलोमीटर तक जा सकता है। इससे रूस के कई मजीद फौजी ठिकाने हदफ में आ सकते हैं। इनमें से चंद एक ये हैं, मसलन एंगल्स एयरबेस जहां से रूस अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च करता है, और वो कारखाने जहां ड्रोन्स की बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या टोमाहाक मिसाइल वाकई इस जंग का रुख बदल सकते हैं? The small number of any missile, and I suspect the number the US. मेरे ख्याल में जितने मिसाइल अमेरिका यूक्रेन को दे सकेगा वो कम होंगे और फौजी लिहाज से ज्यादा फर्क नहीं डालेंगे, मगर हाँ सियासी तौर पर इसका फायदा होगा कि एक अहम सलाहियत को यूक्रेन के लिए मुख्तस किया जाए। तो इसका मतलब दर हकीकत अमेरिका और रूस के दरमियान तनाव कम करने के अमल का खात्मा होगा। ये शायद सदर ट्रंप को सोचने पर मजबूर कर दें। सदर पुतिन पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि यूक्रेन को टोमाहाक देने का मतलब जंग में शिद्दत लाना होगा, और ये हकीकत कि दोनों फरीक अब भी बात कर रहे हैं ये जाहिर करती है कि हतमी फैसला अभी नहीं हुआ। अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान करते हुए रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। इन अमेरिकी पाबंदियों का मकसद यूक्रेन के साथ अमन मुआहदा करने के लिए रूस पर दबाव डालना है। इन पाबंदियों का ऐलान ऐसे वक्त पर हुआ है जब गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था कि रूस के सदर पुतिन से होने वाली मुलाकात मुलतवी हो सकती है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हर बार मेरी व्लादिमीर पुतिन से बातचीत बहुत अच्छी होती है और फिर कुछ होता नहीं है। Look, these are tremendous sanctions. These are very big. Those are against their 2 big oil companies, and we hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled. ओवल ऑफिस में बात करते हुए सदर ट्रंप ने पुतिन पर तनकीद की कि वो अमन के लिए संजीदा नहीं है, और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इन पाबंदियों से उन्हें अमन के लिए मजबूर किया जा सकेगा। सदर ट्रंप ने पाबंदियों को जबरदस्त करार देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगर रूस जंग खत्म करने पर तैयार हो गया तो उन्हें फौरी तौर पर खत्म किया जा सकता है। ट्यूनिस के साहली इलाके में गैर कानूनी तारकीन वतन की एक कश्ती समंदर में डूब गई है। इस हादसे में कम से कम 40 अफराद हलाक हुए हैं। हुकाम का कहना है कि ये रवां साल कश्ती डूबने का सबसे ज्यादा मौलिक हादसा है और हलाक होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। ख्याल किया जा रहा है कि ये कश्ती बहरा रूम की महदिया बंदरगाह के करीब डूबी और उसमें 70 गैर कानूनी तारकीन वतन सवार थे, जिनमें से 30 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है।
کشتی پر سوار افراد کا تعلق کن ممالک سے ہے اس بارے میں زیادہ تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ کشتی پر سوار افراد صحرائے صحرا کے ذیلی علاقوں سے تھے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2023 میں 2,10,000 افراد نے بحیرہ روم عبور کر کے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس کوشش کے دوران 60,000 افراد کو حراست میں لیا گیا اور 2,000 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تیونس کے حکام تحقیقات کر رہے ہیں کہ کشتی ڈوبنے کی وجہ کیا بنی۔ تیونس پر دباؤ ہے کہ وہ غربت اور تنازعات سے تنگ آئے افراد کی جانب سے غیر قانونی طور پر یورپ میں داخلے کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ 2023 میں یورپی یونین اور تیونس نے غیر قانونی ہجرت روکنے کے لیے ایک معاہدہ کیا تھا۔ $118 ملین کے اس معاہدے کا مقصد انسانی سمگلنگ روکنے، سرحد پر سیکیورٹی بڑھانے اور حراست میں لیے گئے تارکین وطن کو واپس بھیجنے کے لیے اقدامات کرنا تھے۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین حالیہ کشیدگی کے بعد دونوں ممالک کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ تو ہو گیا، لیکن سرحد پر آمد و رفت کئی روز گزرنے کے بعد بھی مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکی ہے۔ سرحدی بندش کے سبب افغانستان سے پاکستان آنے والے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سرحد پر آمد و رفت بند ہونے کے سبب دونوں ممالک کے مابین سفر کرنے والے افراد فضائی روٹس استعمال کر رہے ہیں، جس سے ایئر لائنز کے ٹکٹ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ افغانستان سے پاکستان آنے والے مسافروں کا کہنا ہے کہ کابل سے اسلام آباد کا ٹکٹ $500 میں فروخت ہو رہا ہے۔ افغانستان کی آریانہ ایئر لائن کے مطابق ٹکٹ کی قیمت $140 ہے اور مسافر ٹریول کمپنیوں سے مہنگا ٹکٹ خرید رہے ہیں۔ دوسری جانب افغان طالبان کی عبوری حکومت میں نائب وزیر ٹرانسپورٹ اور ہوا بازی فتح اللہ منصور نے مقامی ایئر لائن سے کہا ہے کہ پاکستان کی فلائٹ پر ٹکٹ $140 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ BBC ورلڈ سروس کی ایک سالہ تحقیق میں ترکی میں ایک بڑے جنسی استحصال کے سکینڈل کا انکشاف ہوا ہے، جس نے شامی پناہ گزین خواتین کو متاثر کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق خواتین نے ایک فلاحی تنظیم کے سربراہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ امداد اور مالی مدد کے بدلے ان پر جنسی دباؤ ڈالتا رہا ہے۔ یہ الزامات ترکی میں پناہ گزینوں کے تحفظ اور انسانی حقوق کے نظام پر سنگین سوالات اٹھا رہے ہیں۔ انقرہ سے فندہ نور اوزتورک کی رپورٹ پیش کر رہی ہے عالیہ ناز کی۔ بطول کو وہ زندگی یاد آتی ہے جس نے شام میں جنگ سے بچ کر ترکی آنے کے بعد گزاری تھی۔ ان مسکراہٹوں کے پیچھے ناخوشگوار یادیں چھپی ہیں۔ جو میرے ساتھ ہوا میں اسے یاد نہیں کرنا چاہتی، خاص طور پر سادتین کے ساتھ جو ہوا۔ بطول اپنے بچوں کے ساتھ انقرہ میں اکیلی رہتی تھیں جب انہیں مدد کی اشد ضرورت پیش آئی۔ ہر کوئی انہیں ایک مقامی چیریٹی کی طرف ریفر کر رہا تھا، لیکن وہاں انہیں جو تجربہ ہوا وہ خوفناک تھا۔ جب میں امداد اٹھانے کے لیے مڑی تو اس نے میرے پچھلے حصے پر ہاتھ رکھا۔ میں بہت پریشان ہوئی، مجھے اس پر غصہ آیا۔ میں نے اس سے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں نے اسے دھکا دیا، امداد وہیں چھوڑی اور دکان سے باہر نکل آئی۔ Adı Saadettin Karagöz ama insanlar onu Ensar abi olarak tanıyor. یہ ہے وہ شخص جو الزامات کی زد میں ہے۔ یہ شخص معاشرے کی فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا جب 10 برس پہلے اس نے چیریٹی قائم کی۔ Şimdi Saadettin Karagöz'ü davet ediyorum. BBC ترکی کی 1 سال پر محیط تحقیق نے جنسی زیادتی کا سکینڈل بے نقاب کیا ہے، جس میں کمزور ترین عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ایران var, Somali var, Irak var, Suriyeli var۔ ایسی 3 عورتیں الزام عائد کرتی ہیں کہ انہیں امداد کے بدلے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ان میں سے زیادہ تر اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے مجھ پر بہت خوفناک طریقے سے حملہ کیا۔ میں چیخنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اگر میں نہ چیختی تو وہ حملہ کرتا، مجھے ریپ کرنے کی کوشش کرتا۔ 7 اور افراد جن میں 2 سابق ملازم بھی شامل ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے یا تو خود یہ واقعات دیکھے یا متاثرہ خواتین سے ان کے بارے میں سنا۔ Biz bunları elimizden geldiği kadar gıda پولیس نے کم از کم 2 بار مسٹر کاراگز کی تفتیش کی، مگر دونوں بار استغاثہ نے کہا کہ ثبوت ناکافی ہیں۔
पुलिस में हमारे ज़राए का कहना है कि मज़ीद कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी बाज़ाबिता शिकायत दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं। जिन औरतों से हमने बात की वो कहती हैं कि वो बहुत खौफज़दा हैं। मैं कोई इल्ज़ाम भी तस्लीम नहीं करता। वो पनागज़ीन जो हेरोइन और सिगरेट बेचते हैं, हमने उनकी शिकायत की थी, तो ज़ाहिर है 3, 5 या 10 लोग शिकायत करेंगे। अगर आप कहते हैं कि 100 या 200 लोग हैं, तब ठीक है, तब यकीन किया जा सकता है कि शायद मैंने वाकई वो सब कुछ किया हो। उनकी चैरिटी अब भी काम कर रही है और हमने दर्जनों पनाह गुज़ीनों को इमदाद लेते देखा है। मगर जिन औरतों से हमने बात की वो कहती हैं कि उन्हें अपनी कम्युनिटी की दूसरी औरतों की फ़िक्र है। उन्हें डर है कि जिस ज़्यादती का वो शिकार हुई वो शायद अब भी जारी हो। पाकिस्तान में ख़वातीन को दौरान मुलाजमत हिरासा किए जाने से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले वफाकी मोहतसिब ने एक निजी कंपनी को की छुट्टियों के दौरान खातून मुलाजमा को नौकरी से निकालने पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है। केस से मुतल्लक अहम नुकात जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। ख़वातीन को दौरान मुलाजमत हिरासा किए जाने से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले वफाकी मुहतसिब ने एक निजी IT कंपनी को ज़चगी की छुट्टियों या मैटरनिटी लीव के दौरान एक खातून को नौकरी से निकालने पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है। मुतासरा खातून ने इस्तदा की कि वो 2022 से इस कंपनी में काम कर रही थी और मार्च 2024 में उन्हें ज़चगी की छुट्टी दी गई जो जून तक जारी रहनी थी, मगर अप्रैल में कंपनी ने उन्हें मुलाजमत से फारिग कर दिया और इस फैसले की वजह टीम में महदूद वसाइल बताई। खातून ने इस इक़दाम के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा। उनकी तरफ से मुहतसिब को बताया गया कि कंपनी ने लैपटॉप वापस न करने के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें सनफ़ी बुनियाद पर इम्तियाज़ी सलूक का निशाना बनाया गया है। कंपनी ने दावा किया कि शिकायत करने वाली खातून ने छुट्टियों के दौरान किसी दूसरी कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली थी, लिहाजा उनकी शिकायत के हुकूक ख़त्म हो गए हैं। ताहम वफाकी मुहतसिब के मुताबिक बरतरफी के ख़त में वसाइल की कमी की कोई वाज़ेह तफसील मौजूद नहीं थी और कंपनी का नुमाइंदा भी इस बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं रखता था। कंपनी के डायरेक्टर भी मुहतसिब के सामने पेश नहीं हुए। ताहम नुमाइंदे ने एतराफ़ किया कि ज़चगी की छुट्टियों के दौरान किसी खातून को नौकरी से निकालना सनफ़ी बुनियाद पर इम्तियाज़ी सलूक के ज़ुमरे में आ सकता है। वफाकी मुहतसिब ने अपने फैसले में आईन पाकिस्तान, मुल्की कवानीन और बैनुल अक़वामी मुआहदों का हवाला देते हुए वाज़ेह किया कि ज़चगी की छुट्टी ख़वातीन का बुनियादी हक़ है। उन्होंने इस बात की वजाहत भी दी कि नौकरी से निकाले जाने के बाद दूसरी कंपनी में मुलाजमत इख्तियार करने से मुतासरा खातून को शिकायत करने का हासिल हक़ ख़त्म नहीं हो जाता। मुहतसिब के मुताबिक खातून की बरतरफी गैर कानूनी और सिनफी इम्तियाज़ पर मबनी थी। उनको नौकरी से फारिग करने वाले ख़त को कलअदम करार दिया गया और कंपनी को 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया, जिसमें से 8 लाख मुतासरा खातून को दिए जाएंगे और 2 लाख कौमी ख़जाने में जमा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला सेंट्रल कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हालिया हमलों के बाद अस्करियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इंतज़ामिया ने मुकामी लोगों को एहतियाती तौर पर अपने मकानात खाली करने की हिदायत दी है ताकि कार्रवाई के दौरान शहरियों का जानी नुकसान ना हो। ज़राए के मुताबिक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हरकत बढ़ा दी गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। मज़ीद तफसील अजीज़ुल्लाह खान से। ये एहतजाजी धरना सेंट्रल कुरम के लोग दे रहे हैं और ये धरना बुनियादी तौर के ऊपर सेंट्रल कुरम में एक फौजी कार्रवाई के हवाले से ही दिया जा रहा है। इन लोगों का ये कहना है कि उनके इलाके को खाली कराया गया है और लोगों से कहा गया है कि वो यहाँ से नकल मकानी करें क्योंकि उनके इलाके में एक फ़ौजी कार्रवाई की जानी है। और ये फ़ौजी कार्रवाई क्यों की जा रही है, इस बारे में ये कहा गया है कि अक्टूबर की 7 और 8 तारीख के दरमियानी जो शब थी उस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कुरम और औरंगज़ई के इन सरहदी इलाकों में हमला हुआ था, जिसमें इब्तदाई तौर पर यह कहा गया कि 11 सिक्योरिटी एहलकार, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल थे और एक मेजर भी शामिल थे, वो हलाक हुए थे और उसके बाद अगले रोज़ कोई 5 मजीद लाशें भी मिली थी। जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद से यहाँ पे ये कहा गया कि यहाँ पर एक फौजी कार्रवाई की जानी है और लोगों को यहाँ से निकालना है और इन लोगों को 3 दिन का वक्त भी दिया गया था। इन लोगों ने वहाँ से नकल मकानी शुरू की और ये ज़्यादातर लोअर कुरम के इलाके में आए हैं, लेकिन इनके लिए जो कैंप है वो इसके करीबी ज़िला हंगू में एक टल के मकाम पर एक गर्ल्स कॉलेज में कायम किया गया है, लेकिन उस कैंप में लोग नहीं गए।
वो लोग अपने तौर पर या तो वो वहाँ पर बुनियादी तौर के ऊपर किराए के मकानों में रह रहे हैं या उन्होंने अपने रिश्तेदारों के यहाँ क़याम किया हुआ है। इस एहतजाजी धरने में बैठे जो लोग हैं, इनका ये कहना है कि उनके इलाके में ये कोई पहली मरतबा कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि इससे पहले 2009 में भी यहाँ पे फौजी ऑपरेशन मुकम्मल किया गया था और उसके बाद 2017 में लोगों को वापस ये कहकर भेजा गया था कि अब ये इलाका अस्करियत पसंदों से खाली हो चुका है। लेकिन अब 2025 में एक मरतबा फिर यहाँ पे एक फौजी कार्रवाई की जा रही है। हमारे बुनियादी मुतालबा ये कि हमारे इलाके में पूरी मिलिट्री ऑपरेशन बंद कर दिया जाए। जितने भी लोग मुतासर हो चुके हैं IDPs में, उसको जल्द अज जल्द अपने इलाके में वापस कर दिया जाए। आम आवाम की घरों को, आम आवाम की आबादी पर गोलाबारी बंद कर दिया जाए और हमारे इलाके में एक दायमी अमन का सूरत इख्तियार किया जाए। 2009 मिलिट्री ऑपरेशन में हमारे जितने भी घर मसमार हो जाए, अभी तक आप लोगों ने उसका वजीफ़ा मुआवजा नहीं दिया और अब आप 2025 में हमारे फिर से वही घर आप उजाड़ रहे हैं। जो वहाँ पे सरकारी ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि बुनियादी तौर के ऊपर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं और वहाँ पे जो अस्करियत पसंद मौजूद हैं, तो वो ये उनके ख़िलाफ़ एक कार्रवाई की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अक्सर जो अस्करियत पसंद हैं, ये आम आबादी का सहारा लेकर वहाँ पे उनमें घुस जाते हैं। लेकिन जहाँ पे जो एहतजाज में बैठे लोग हैं या उन मकामी लोगों से हमारी बात हुई है, तो उसने कहा जब ये नकल मकानी होती है तो वहाँ पर ये जो अस्करियत पसंद हैं वो भी मौजूद नहीं रहते, वो भी चले जाते हैं। तो इसलिए उनका ये कहना था कि इनके इलाके को जो लोग नकल मकानी कर गए हैं उनको वापस अपने इलाकों को भेजा जाए, क्योंकि माजी में जो यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था उसमें भी इनके मकानात को, इनकी प्रॉपर्टीज़ को, इनके इलाकों को शदीद नुकसान पहुँचा था। सदियों से बर्रे सगीर के सूफी बुजुर्गों के मज़ारात कवाली की रूहानी धुनों से गूंजते आए हैं। एक ऐसी मौसीकी जो दिल की गहराइयों में उतर कर महसूस की जाती है। आज हमारे रिपोर्टर मिर्जा बेग आपको दिल्ली के रूहानी मरकज में ले जाएंगे, जहां कवाली की ये रिवायत जन्म लेती है और आज भी अकीदत और वजद की वही लय सुनाई देती है। सूफी बुजुर्गों की दरगाहें और कव्वाली, ये दोनों सदियों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कव्वाली की इब्तदाई सदाएं इन्हीं मज़ारात से बुलंद हुईं। यहाँ ये सिर्फ मौसीकी नहीं बल्कि एक रूहानी तजर्बा है, ऐसा वजद, ऐसा सुरूर जो दिलों को यकजा कर देता है। जहाँ सिमा या कव्वाली का नाम आ जाता है वहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम का बैरियर ही ख़त्म हो जाता है। यूथ इसके लिए, कव्वाली या महफिल सिमा के लिए जगह जगह भटकता है सुनने के लिए, और रियलिस्टिक उनको जो सिमा या कव्वाली कहते हैं वो बारगाहों पे मिलती है। मौरखीन कहते हैं कि इस्लाम हिंदुस्तान में 3 रास्तों से आया: तिजारत, फतूहात और सूफीज़्म व मौसीकी के ज़रिए। दिल्ली के कुतुब मीनार के साये तले मदफून सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी को कव्वाली का बानी माना जाता है। 12वीं सदी में वस्ती एशिया से आने के बाद उन्होंने बड़े सग़ीर में सिमा की रवायत को फ़रोग़ दिया, जो बाद में कव्वाली की सूरत इख्तियार कर गई। कव्वाली को मुतारिफ़ करवाने का सेहरा अगरचे हज़रत बख्तियार काकी को जाता है, लेकिन इसे अवामी सतह पर मकबूल बनाने वाले अमीर खुसरो थे, जो शायर, अदीब और मौसीक़ार के साथ साथ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद भी थे। और सूफिया के जो बहुत ही पेचीदे और कॉम्प्लिकेटेड फ़लसफ़े होते हैं तसव्वुफ़ के, उनको उन्होंने आम लोगों की भाषा में, हिंदवी में ढाल कर मौसीकी में ढाला और उन्हें कव्वालियों के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। जो फ़न कव्वाली है अपनी ज़ीनत पर पहुंचता है 14वीं सदी में, जब निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं वो चिश्ती सिलसिले की कमान संभाल लेते हैं दिल्ली में। इसमें हज़रत अमीर खुसरो ने तीसरा रिसाला पूरा सिमा यानी कव्वाली पे लिखा है और उसमें ये कहते हैं कि ऐसा कोई दिन गुज़रता नहीं था जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो से नई नई तरह की कव्वालियाँ लिखने और ईजाद करने की फरमाइश नहीं करते थे। अगरचे कव्वाली का फ़न सदियों पर मुहित है, लेकिन आज के दौर में कव्वालों के लिए इसकी असल रूह को बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। ये अक़ीदत से ज़्यादा अब शोहरत का वसीला बन गई है। मगर मेहरौली से लाहौर,
اور اجمیر سے دلی تک ان درگاہوں میں آج بھی وہی ساز وہی صدائیں ہیں جو صدیوں پہلے یہاں گونجتی تھیں اور دلوں کو وہی روحانی سرور بخشتی ہیں جو پہلے بخشتی تھی۔ مرزا عبدالباقی، BBC نیوز، دلی۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔